Yes, I think we have many new students today. Student, I want to inform you that this is the class of content writing and blogging. Okay? Yes. Yes, Sakshi. So, आज आपका फर्स्ट डे है, ओके? गुड इवनिंग, आस्था. You all are from content writing, right? कोई और सब्जेक्ट का स्टूडेंट तो नहीं है यहाँ पे? I hope none of you is from some another subject. Because as per the management, I was informed that this class only have two students. So please confirm that if you are from content writing and blogging. मनीषा, सोनम, साक्षी, आपका कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग ही है ना? गुड. एंड सोनम एंड मनीषा आपका? इस क्लास में यू हैव टू स्पीक, ओके? आपको आंसर करना पड़ेगा. बिकॉज आई लाइक टू कीप माई क्लासेस इंटरेक्टिव. So you can't just keep your mics off. You have to speak. Or if you cannot speak, you can reply in chat box, okay? But don't stay quiet. Otherwise, you will feel bored. Chalo, let's start. So, for the new students, we have covered two lectures till now. बेसिक ही था, कुछ ज्यादा नहीं था. तो आज का जो लेक्चर है वो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि आपने दो लेक्चर्स मिस करे हैं. Yes, Asta, I'm just giving them the introduction. I will ask questions, don't worry. ओके, सो आज का लेक्चर भी आप ऐसे ही समझो कि स्टार्टिंग से है, बिकॉज जो कंटेंट हमने आज पढ़ा था उसका ही हमने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट के दो लेक्चर्स में. सो आपको आज डिटेल में सब समझ आ जाएगा. डू नॉट वरी. और अगर आपको पिछले लेक्चर देखने भी हैं, if you want to revise, you can just watch them on YouTube, okay? Recorded lectures you will get. Yeah. So, okay, so Astha, आप ही हो सिर्फ. Alex is not here today. Okay, Sonam, Sakshi, Manisha, and Lucy. YouTube link. Yeah, I will send the link. Don't worry. Let me just ask few questions from yesterday's lecture. Don't worry, I will not ask you. Students, those were present yesterday, only they can speak. Yeah. So last lecture we studied sentence type, sentence structure, different type of sentences, importance of grammar, how to reduce mistake, common mistakes that students make, right? Okay. So Astha, you were there yesterday. Alex was there, but he's not here today. So you can answer a few questions I'm gonna ask. You can unmute yourself and please answer. I will give you the assess.
नाम लिखकर ही, ओके, यू डोंट वांट टू स्पीक, ठीक है, ओके, एज यू विश आस्था। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? Students, if any of you know the answer, you can also speak, okay? Or you can write. What is a sentence? ठीक है. What is the structure of sentence? What is the structure of sentence? Structure आस्था, ये तो types है ना? Yesterday also you did the same mistake. Remember? Structure. Subject, verb और object. Okay. What is a verb? Verb क्या होता है? Action या काम बताना, ठीक है. What are the most common mistakes students do while writing? Anshu. What are the common mistakes students do while writing? Anshu, you were in first class, है ना? Spelling error, grammar mistakes, punctuation, ठीक है. Okay, Astha, that's all. Let's start with the new lecture today. So for my new students, I am Ria, okay, and I'm your educator and facilitator for this course, which is content writing and blogging. ठीक है, आज थर्ड सेशन है हमारी क्लास का. 2 सेशन हो चुके हैं. मैं आपका थोड़ा क्रक्स दे दूं. हमने बेसिकली क्या पढ़ना है? हमने कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ना है और ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ना है. अब कंटेंट राइटिंग क्या होता है? कोई भी चीज जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए या किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए लिखते हो, उसे हम बोलते हैं कंटेंट राइटिंग. एनीथिंग दैट यू राइट फॉर एन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग. अब कंटेंट राइटिंग का आप हर जगह देखते हो अपनी डेली लाइफ में. आप इंस्टा पे देखते हो, आप न्यूज़पेपर में देखते हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो. जैसे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज होते हैं ना, व्हाट आर दे आर ऑल्सो कंटेंट. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने टाइप ऑफ कंटेंट के बारे में पढ़ना है कि कितने कंटेंट के टाइप्स होते हैं. चलो, लेट्स स्टार्ट. आज हम क्या करेंगे? आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको लिखा कैसे जाता है उस चीज को समझेंगे. ब्लॉग्स को, आर्टिकल को, सोशल मीडिया कंटेंट को डीपली पढ़ेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनका डिफरेंस समझेंगे कि इन तीनों चीजों में डिफरेंस कहाँ कहाँ है. कॉपी राइटिंग समझेंगे. कॉपी राइटिंग आपके लिए एक नया टॉपिक है. कॉपी राइटिंग होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज किया जाता है, कौन इन्हें यूज करता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे. ओके. इंट्रोडक्शन टू द फॉर्मेट टू कंटेंट टाइप्स.
अब कंटेंट टाइप्स क्या होता है, देखो कंटेंट जो होता है ना वो बहुत तरह का होता है और हर प्रकार का एक डिफरेंट इंपॉर्टेंस होगा, एक डिफरेंट टाइप होगा, ठीक है। आई मीन टू से एवरी कंटेंट विल हैव इट्स ओन टाइप। ओके, सो पहला हमारा टाइप है ब्लॉग्स। ब्लॉग को अब हम डीपली समझते हैं कि पीपीटी शो नहीं हो रही, सॉरी मैं तो शेयर करना ही भूल गई, गिव मी अ सेकेंड। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल स्टूडेंट्स? I want all of you to please response. Okay, चलो ब्लॉग को पढ़ते हैं। पहला हमारा कंटेंट टाइप है ब्लॉग। अब ब्लॉग क्या होता है ना, ब्लॉग इज एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग विच इज पब्लिश्ड ऑनलाइन। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक पीस ऑफ राइटिंग ही है, ब्लॉग एक तरह का लेख ही है जो बहुत एंगेजिंग होता है, जिसको पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। पर ये ऑनलाइन पब्लिश करा जाता है, ठीक है। अ ब्लॉग इज एन इनफॉर्मल एंड एंगेजिंग पीस ऑफ राइटिंग पब्लिश्ड ऑनलाइन। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक लेख है जिसको हम ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें क्लास, तो इसका ना कन्वर्जेशनल टोन होता है, इनफॉर्मल टोन होता है और बहुत ज्यादा ना फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है ब्लॉग्स को। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ नॉट एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड और फैसिलिटेटर बात करूँ। सो आई ट्राई टू कीप इट इनफॉर्मल लिटिल बिट। ओके, सो इसका ना एक कन्वर्जेशनल टोन है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, अपनी फैमिली के साथ बात करते हो, या अपने फ्रेंड्स और जान पहचान के लोगों के साथ जैसे आप बात करते हो, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेशनल टोन। तो जब हम ब्लॉग को कन्वर्जेशनल टोन में लिखते हैं तो रीडर का इंटरेस्ट बनता है, रीडर को आपका कंटेंट फॉर्मल नहीं लगता है। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब एक ब्लॉग एक ही टॉपिक पे आधारित होगा, एक ब्लॉग में आप मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, आप उस टॉपिक के रिलेटेड मल्टीपल आइडियाज के बारे में बात कर सकते हो, बट आप मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर सकते एक ब्लॉग में, ये ध्यान रखना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टॉपिक है हेल्थ या हेल्दी हैबिट्स। अब हेल्थ में देखो, हेल्थ बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। हेल्थ तो एक ब्रॉड टर्म है ना, बहुत बड़ी टर्म है। हेल्थ के अंदर तो बहुत कुछ आता है, मेडिसिन आती है, एक्सरसाइज आती है, कितना कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। बट हमने क्या करना है, उसका एक छोटा सा पार्ट लेना है, ठीक है। उसके ऊपर हमने फिर ब्लॉग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर है इजी टू रीड। ब्लॉग सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बहुत फ्रेंडली भाषा में लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजी टू रीड होते हैं। उनमें ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं होती है, मुश्किल वर्ड्स का यूज नहीं करा जाता है, जिसकी वजह से उनको हम इजीली पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें एडवांस्ड वोकैबुलरी होने की या एडवांस इंग्लिश नॉलेज होने की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर ब्लॉग्स बहुत सिंपल, नॉर्मल और इजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाँ, फैंसी वर्ड्स नहीं लिखे जाते ब्लॉग में। अब हम ब्लॉग के करेक्टर्स की बात करते हैं कि ब्लॉग के करेक्टर्स कैसे, एक ब्लॉग कैसा होना चाहिए। पहला, कैची टाइटल। आपके ब्लॉग का जो टाइटल है ना वो बहुत कैची होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। मतलब टाइटल पढ़ के ही रीडर का मन करे आपके ब्लॉग को आगे पढ़ने का। क्योंकि पहली चीज ना हमेशा रीडर टाइटल ही देखेगा।
ठीक है, तो ट्राई करो अपने ब्लॉग के टाइटल्स को कैची रखो, एंगेजिंग रखो, थोड़ा क्रिएटिव रखो। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट पैराग्राफ। अब शॉर्ट पैराग्राफ इसलिए लिखे जाते हैं ताकि रीडर बोर ना हो जाए, क्योंकि आप मुझे खुद बताओ, बड़े बड़े पैराग्राफ्स कोई नहीं पढ़ता आज के टाइम में, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका एक एक पेज का पैराग्राफ पढ़े। नहीं, तो ब्लॉग्स में क्या करा जाता है, ब्लॉग्स में पैराग्राफ को छोटा रखा जाता है, और पैराग्राफ छोटा होगा तो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो याद रखना, अच्छा टाइटल और शॉर्ट पैराग्राफ। पर्सनल और एंगेजिंग टोन। अब टोन आपकी फ्रेंडली होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, कि रीडर को पढ़ने में मजा आए, रीडर को ऐसे महसूस होना चाहिए कि ऑथर बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहा है, बाय एड्रेसिंग द रीडर। ओके, तो आप जैसे लिख रहे हो ना, आपकी लिखाई में वो वेटेज होना चाहिए कि रीडर को पढ़ने में मजा आए। रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आपकी ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए। ब्लॉग की लैंग्वेज हमेशा ही सिंपल रहती है, जो कि सब लोग आराम से पढ़ सके। मैंने पहले भी बताया, फैंसी वर्ड्स का, टेक्निकल वर्ड्स का, हाई वोकैबुलरी का, एडवांस वोकैबुलरी का यूज कम से कम करो या तो नहीं करो। सिंपल वर्ड्स का, कॉमन वर्ड्स का यूज करो अपने ब्लॉग्स में, क्योंकि ब्लॉग का क्या काम है, ब्लॉग का काम है रीडर्स को कनेक्ट करना, हमारे थॉट से रीडर्स को कनेक्ट करना। पर अगर हम अच्छे से लिख ही नहीं पाएंगे, तो हमारे विचार, हमारी इंफॉर्मेशन, थॉट्स दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे? अगर हमारी लैंग्वेज ही गलत होगी, हमारी लैंग्वेज ही हमारे रीडर के हिसाब से नहीं होगी, तो वो कंटेंट नहीं पढ़ पाएगा। तो इसकी वजह से आपने क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। ओके, तो पहला करेक्टर क्या था, कैची टाइटल। दूसरा है शॉर्ट पैराग्राफ। तीसरा है एंगेजिंग टोन। और चौथा है रीडर फ्रेंडली यानी कि सिंपल लैंग्वेज। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। अब आर्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। ओके, घरेलू भाषा। हाँ, आर्टिकल क्या होता है ना, आर्टिकल इज अ फॉर्मल एंड इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग। जहां पे ब्लॉग में हम फ्रेंडली लैंग्वेज यूज करते हैं ना, आर्टिकल में बिल्कुल इसको ऑपोजिट है। आर्टिकल में हम प्योर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं, और आर्टिकल का मेन पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन देना। देखो यहाँ पे पीपीटी में देखोगे, पीडीएफ में देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, एन आर्टिकल इज अ फॉर्मल एंड इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग। मतलब आर्टिकल से हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला फीचर, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अब आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये बेसिकली आर्टिकल का स्ट्रक्चर है, मतलब उसका फॉर्मेट है। दूसरा फीचर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब आर्टिकल में ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, बिल्कुल डिटेल में। क्यों होता है ऐसा, क्यों डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है? क्योंकि आर्टिकल फैक्ट बेस्ड होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं। यस निशु? एनी क्वेश्चन? ओके, चलो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई होती है आर्टिकल में, जिसकी वजह से आर्टिकल की लेंथ भी लॉन्ग होती है। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास इसलिए दी जाती है क्योंकि आर्टिकल्स आर फैक्ट बेस्ड, और आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ना, उसके पीछे का आपको रीजन लिखना पड़ेगा, एविडेंस लिखना पड़ेगा कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है अपने आर्टिकल में। आर्टिकल इज ऑपोजिट। हाँ, आर्टिकल बिल्कुल ब्लॉग का ऑपोजिट है। एक काम बस सेम करता है, वो सिर्फ एक काम सेम करता है, ब्लॉग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आर्टिकल भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हाँ आस्था, आर्टिकल बोरिंग लगते हैं क्योंकि एक तो ये फॉर्मल होते हैं,
और बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। ऑब्जेक्टिव टोन। अब ऑब्जेक्टिव टोन का क्या मतलब है, पहले समझो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है, हाँ, ब्लॉग इज नॉट फैक्ट बेस्ड, पर पर्पस दोनों का सेम ही है। ब्लॉग्स क्या करते हैं, एंगेज करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। आर्टिकल्स एंगेज नहीं करते, पर इन्फॉर्म वो भी करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्टिविटी का क्लास मतलब होता है समथिंग विच इज फैक्चुअल, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टोन का ये मतलब हुआ कि आर्टिकल में जो भी आप मटेरियल लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी कंटेंट लिखोगे, वो लॉजिकल होना चाहिए। उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कोई साइंटिफिक रीजन, लॉजिक, है ना, या कोई रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। अब ये होता है रिसर्च बेस्ड टॉपिक कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज है मॉडर्न एजुकेशन में। पहला तो एआई। एआई स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता है असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में, है ना। फिर आ जाती है ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है ना, लैपटॉप के थ्रू हो रही है, आपके मोबाइल फोन्स के थ्रू हो रही है। यस साक्षी, यस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम। पहला कैरेक्टर है आर्टिकल का, उसका फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है आर्टिकल का, इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगी, कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो कि आपका टॉपिक किस चीज के बारे में है, आपका टॉपिक है क्या। ठीक है। बॉडी में आप कंटेंट डालते हो। बॉडी ना मेन पार्ट होती है आपके आर्टिकल का या किसी भी राइटिंग का। बॉडी इज द मेन कंटेंट जिसमें आप अपने आइडियाज डालते हो, जो भी आपने सोचा है कि क्या क्या लिखना है, कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, वो सब आप बॉडी में लिखते हो। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपने पूरे कंटेंट को समराइज कर देते हो। जो भी आपने बॉडी में लिखा, आप उस कंटेंट को समराइज कर दोगे। ठीक है, या आप उसमें अपने रिकमेंडेशन, सजेशंस, ये सब भी दे सकते हो। अब ब्लॉग का और आर्टिकल का कंक्लूजन में भी एक डिफरेंस बताती हूँ। ब्लॉग के कंक्लूजन में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाल सकते हो, पर आर्टिकल के कंक्लूजन में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं डाल सकते। हाँ, आर्टिकल में आप अपना आइडिया दे सकते हो, रिकमेंडेशन दे सकते हो, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करी जाए, या अपना सजेशन दे सकते हो, या कोई एडवाइस दे सकते हो। बट पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शेयर करा जा। आर्टिकल फॉर्मल होता है ना, उसमें पर्सनल टोन नहीं होती है, बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। फिगर्स भी, हाँ, डाटा भी आप प्रोवाइड करते हो स्टैटिक्स में। कोई पाई डायग्राम हो गई, या कोई हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है, या पाई चार्ट हो गया, कुछ भी ऐसा। फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये मैंने बार बार बताया है। आर्टिकल हमेशा फैक्ट बेस्ड होगा, सच्चाई पे, रियलिटी पे, रिसर्च पे। ठीक है। और आर्टिकल्स बहुत एक्सप्लेनेशन में लिखे गए होते हैं, बहुत डिटेल में लिखे जाते हैं, तभी वो मोस्टली स्टूडेंट्स को बोरिंग लगते हैं। क्योंकि देखो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी तो लेंथ तो लंबी हो जाएगी, और लंबा लंबा कंटेंट पढ़ना, इट्स क्वाइट टायरिंग, है ना। हाँ, आर्टिकल प्रोफेशनल वर्ड है, वर्क है। इट्स वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी एकेडमिक। ये बोरिंग है। यस साक्षी, इसीलिए बोरिंग है आर्टिकल। चलो, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया। लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया का क्या मतलब होता है,
हर पैराग्राफ का अपना एक यूनिक आइडिया होगा। आप एक आइडिया को पूरे आर्टिकल में नहीं घड़ीस घड़ीस सकते, ठीक है। ब्लॉग में भी ऐसा ही होता है, हर पैराग्राफ का अपना एक आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन पे अगर लिख रहे हो तो पहला पैराग्राफ जाएगा, एजुकेशन के बहुत पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं एजुकेशन में। अगर आप उस पे आर्टिकल लिख रहे हो, पहले आर्टिकल में आप लिखोगे एआई इन एजुकेशन, दूसरे आर्टिकल में ऑनलाइन लर्निंग, रेगुलर लर्निंग, जो क्लासरूम लर्निंग्स होती हैं उनके प्रोस कॉन्स फैक्ट्स पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका एक फ्लो बना रहेगा आइडियाज का। हर पैराग्राफ में एक डिफरेंट आइडिया, एक डिफरेंट थ्योरी। आर्टिकल्स का फोकस क्या है, मेन फोकस, आर्टिकल्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ब्लॉग्स भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बट इन एंगेजिंग वे, ठीक है, इन अ वेरी फ्रेंडली एंगेजिंग वे। आर्टिकल्स भी इंफॉर्मेशन ही देते हैं बट कैसे, बहुत ही फॉर्मल वे में, बहुत ही एक एकेडमिक प्रोफेशनल वे में। चलो फिर हमारा आता है सोशल मीडिया कंटेंट। अब पहले मुझे बताओ कि आप में से इंस्टा वगैरह कौन यूज करता है। आस्था तो नहीं करती, आई नो हर। बाकी बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू यूज इंस्टाग्राम। यू आर ऑल्सो नॉट यूजिंग, ओके नो वरीज। निशु इज सेइंग करते हैं मैम, दैट्स गुड। बाकी मनीषा, लूसी, आप लोग नहीं करते। हाँ, थर्ड पॉइंट क्लियर नहीं है, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया। वेट, आस्था, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज का मतलब है हर पैराग्राफ का अपना एक यूनिक पॉइंट होगा, एक यूनिक आइडिया होगा जिसपे पूरा पैराग्राफ आधारित होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है 10 हैबिट्स फॉर हेल्दी लाइफ या हेल्दी लाइफस्टाइल। तो पहला पॉइंट है हैव अ बैलेंस डाइट, ये हमारा पहला आइडिया हो गया। पॉइंट नंबर 1, हैव अ बैलेंस डाइट। फिर उसको क्या करेंगे, एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देंगे कि बैलेंस डाइट होती क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली। फिर पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देंगे क्यों एक्सरसाइज रेगुलर जरूरी इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। थर्ड पॉइंट होगा ड्रिंक एट लीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर। ऐसे हमारे हर पैराग्राफ का एक यूनिक आइडिया होता है, उसे हम बोलते हैं लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। इज इट क्लियर नाउ। ओके गुड। सोशल मीडिया कंटेंट, अब सोशल मीडिया कंटेंट कैसा होता है, देखो सोशल मीडिया कंटेंट ना शॉर्ट होता है, क्रिएटिव होता है और बहुत ज्यादा एंगेजिंग होता है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी इस क्लास में, आई थिंक कल या परसों दी थी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज का रिप्लाई भी करने जाए ना, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली रील्स की तरफ चला जाता है। तो वी स्टार्ट स्क्रोलिंग रील्स और हमें तब पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा या 2 घंटा बीत गया। इट मीन्स यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, ठीक है। आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा जब आप सोशल मीडिया पे हो, कैसे आपका टाइम जा रहा है। सोशल मीडिया को डिजाइन ही इस तरीके से करा गया है, सोशल मीडिया के कंटेंट को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ऑडियंस एंगेज रहे, ऑडियंस इधर उधर ना जाए। आप रील्स देखते होंगे सब, तो रील्स कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, क्रिएटिव होती हैं।
अब आपने कभी ऐसे नोटिस करा है, अब हम ना जब मूवीज देखे तो मन भटकने लगता है, आप मूवी बंद करके भी रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, या कभी कोई ऐप खोल लेते हो, या कभी कभी किसी ने, अब के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी एक मूवी को एक फ्लो में कंप्लीट नहीं करता है, तोड़ तोड़ के हिस्सों में हम मूवीज देखने लग गए हैं अब। मतलब फोकस कितना देखो कम हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, हम फोकस ही नहीं कर पाते। आप पढ़ने भी बैठोगे ना तो आप 15 मिनट 20 मिनट पढ़ोगे, फिर मन करेगा यार फोन खोलें और स्क्रॉल करना शुरू कर दें। डू यू अग्री, होता है आपके साथ? है ना, मूवीज देखना बोरिंग लगने लगा है, क्योंकि मूवीज की लेंथ लंबी होती है और हमारा फोकस रिड्यूस होता जा रहा है टाइम के साथ। तो सोशल मीडिया का वो 30 सेकंड का 1 मिनट का कंटेंट अच्छा लगने लग गया है। ठीक है, क्योंकि फोकस ही नहीं रहा अब इतना, 1 मिनट से ज्यादा हम टिक ही नहीं पाते कहीं पे। चलो, सिंपल लैंग्वेज, अब फीचर्स की अगर हम बात करें, सिंपल लैंग्वेज यूज होती है जो सबको समझ आ जाए। अटेंशन ग्रैबिंग, अटेंशन ग्रैबिंग रील्स क्या करती हैं, आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचती हैं। सॉरी। इंक्लूड इमोजीज, हैशटैग, विजुअल्स। सोशल मीडिया कंटेंट में ज्यादातर इमोजीज का यूज होता है, हैशटैग का यूज होता है। हैशटैग का यूज क्यों होता है? रीच बढ़ाने के लिए। ओके क्लास, रीच बढ़ेगी तो ज्यादा लाइक आएंगे, ज्यादा शेयर आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा कमेंट्स आएंगे। और सोशल मीडिया का काम क्या है? एंगेजमेंट। अब कुछ एग्जांपल है सोशल मीडिया कंटेंट की, जैसे कि इंस्टाग्राम के कैप्शन और ट्विटर पे आप जो ट्वीट। विजुअल्स का मतलब होता है पिक्चर्स या वीडियोस, जिस चीज को हम देख पाए उसे हम बोलते हैं विजुअल्स। सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, जो रील्स होती हैं, वो कैसा कंटेंट है? विजुअल कंटेंट। वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। फोटोज को, इमेजेस को, वीडियोस को, उन्हें हम नॉर्मली विजुअल्स बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट होते हैं सोशल मीडिया कंटेंट। रील कभी देखी है 2 घंटे की रील या 1 घंटे की रील? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की रील। इनफॉर्मल टोन, फॉर्म टोन होगी आपकी फ्रेंडली कन्वर्जेशनल। फॉर्मल टोन का, एकेडमिक टोन का, प्रोफेशनल टोन का यूज नहीं करा जाता सोशल मीडिया पे। तो टोन कैसी रखनी है? इनफॉर्मल। याद रखोगे? 30 सेकेंड, हाँ, पर अब जो थोड़ी वीडियोस डालते हैं वो 1 मिनट की भी होती हैं कई रील्स। जो कंसेप्चुअल रील्स होती है ना, वो 1 मिनट की होती हैं। इनकरेज इंटरेक्शन, इनकरेज इंटरेक्शन का क्या मतलब है? लाइक, कमेंट, शेयर्स के पीछे भागना, रीच बढ़ाना, एंगेजमेंट बढ़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इनकरेज इंटरेक्शन। लोगों को खुद में एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाता है सोशल मीडिया। कभी दोस्त बनाए हैं सोशल मीडिया पे? ओके, अब ये टॉपिक थोड़ा सा नया लगेगा आपको, कॉपी राइटिंग। ठीक है, दिस इज अ बिट न्यू टॉपिक। नो मैम, ट्रस्ट इश्यूज, या अच्छी बात है, होने चाहिए ट्रस्ट इश्यूज। मुझे भी बहुत है, सबको होते हैं, अब के टाइम में किसको नहीं है ट्रस्ट इशू। चलो, चलो, कॉपी राइटिंग होता क्या है पहले ये समझते हैं। कॉपी राइटिंग इज राइटिंग यूज टू प्रमोट और सेल प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। कॉपी राइटिंग एक ऐसी राइटिंग की फॉर्म है
यस आस्था, राइट। सोशल मीडिया, सॉरी, कॉपी राइटिंग का मतलब है ऐसा कंटेंट या ऐसी राइटिंग जिससे हम किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को सेल करते हैं। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको एक अच्छा सा। सोशल मीडिया अब आप में से काफी कम लोग चलाते हैं, बट अगर आपने कभी देखा हो तो कभी ऑब्जर्व करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं। पेड प्रमोशंस, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, चाहे वो खुद यूज करते हो या ना करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही बेकार क्यों ना हो, बट वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपी राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है इंडस्ट्री में, ठीक है, कोई ब्रांड नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, मेकअप प्रोडक्ट्स का, स्किन केयर का। हाँ, स्किन केयर में क्या करते हैं, गेट ग्लोइंग स्किन इन जस्ट 10 days, है ना, गेट ग्लोइंग ब्राइट स्किन इन 15 days। अब देख, मुझे बताओ तुम, 15 दिन में कोई प्रोडक्ट बंदे को डार्क से बहुत ज्यादा फेयर कर सकता है? एक तो ये इनसिक्योरिटीज प्रमोट करते हैं, क्यों डार्क स्किन अच्छी नहीं होती क्या, डार्क स्किन इज वेरी गुड, आई थिंक डार्क स्किन इज मोर बेटर, है ना। एक तो डार्क कॉम्प्लेक्शन आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है, ब्राउन स्किन इज वेरी गुड। वही तो नहीं कर पाते हैं ये, देखो, सिंस चाइल्डहुड। ऐसे ये बस ना प्रमोशंस होती हैं, कॉपीराइटिंग होता है। एडवर्टीजमेंट्स जो आप देखते हो, आप टीवी चैनल्स पे देखते हो एडवर्टीजमेंट्स, इंस्टाग्राम पे देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, ये सब कॉपीराइटिंग है, एडवर्टीजमेंट्स है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आपको स्किन केयर प्रोडक्ट देखोगे ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा रिजल्ट्स इन 2 weeks, रिजल्ट इन 10 days, रिजल्ट इन 15 days। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि स्किन केयर का कोई फायदा नहीं है, बट देखो, 10-15 दिन में कोई फर्क नहीं आता है। एटलीस्ट 2 महीने लगते हैं स्किन केयर को भी अपना काम करने में। क्लाइमेट पे, जीन्स पे, हाँ, स्किन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। यस आस्था, एग्जैक्टली। पर हमारे इंडिया में क्या है ना, हमारे इंडिया में यार बहुत ज्यादा लोगों को ना ऑब्सेशन है गोरे होने का, आई डोंट नो व्हाई। इंडिया में लोग सोचते हैं अगर कोई इंसान गोरा है ना तो वो सबसे सुंदर है। मार्केटिंग कैंपेन्स, अब वो एक गोरे रंग की मॉडल ले आएंगे, उसको पहले थोड़ा सा ब्राउन टिंट लगा देंगे फेस पे। हाँ, मीडियम स्किन की, अरे हरनाज संधू कौन सी ज्यादा गोरी है, शी इज फ्रॉम पंजाब और उसका ना व्हीटिश सा कॉम्प्लेक्शन है। हाँ, सुष्मिता सेन, अरे प्रियंका चोपड़ा, शी इज डार्क स्किन टोन, राइट। प्रियंका चोपड़ा इज नॉट वेरी फेयर स्किन, शी इज ऑल्सो डार्क, है ना। मार्केटिंग कैंपेन्स में दे विल ब्रिंग अ वेरी गोरी मॉडल और उसको थोड़ा सा लगा देंगे ब्राउन टिंट, और बाद में रिमूव करके बता देंगे देखो हमारे प्रोडक्ट का कितना अच्छा काम है। सो इन सब ट्रैप्स में कभी मत फंसो। फिर एक कॉपीराइटिंग एग्जांपल है, जब ब्रीडर्स को परसुएट करना कोई चीज खरीदने के लिए, तो ब्रांड्स क्या करते हैं, ऑफर्स लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, ब्रांड पे किसी प्रोडक्ट पे सेल लगा दो, बाय नाउ एंड गेट 50% ऑफ। तो हमारा पता क्या साइकोलॉजी की, यार सस्ते में मिल रहा है तो ले लो। तो क्या होता है, इससे ब्रांड का फायदा होता है, ब्रांड की क्या होती है, सेल बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, हाँ, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या विच इज वेरी नियर टू गेट एक्सपायर्ड, विच आर वेरी नियर टू गेट एक्सपायर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपीराइटिंग, परसुएसिव लैंग्वेज, परसुएसिव लैंग्वेज का मतलब है
किसी इंसान को उकसाना उस काम को करने के लिए। अब सेल्स ये क्यों लगाते हैं, इतने बड़े बड़े ऑफर, 70% ऑफ, 80% ऑफ क्यों लगाते हैं? हमें उकसाने के लिए कि हम खरीदें इनका प्रोडक्ट। ठीक है। क्लियर कॉल टू एक्शन, जो बोलते हैं, मतलब डू दैट ओनली। क्लियर क्लियर कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है? सीटीए बोलते हैं हम इसे, कि एक लाइन में ही पूरी चीज बोल दी गई है, जो मेन पॉइंट है, पूरा मेन पॉइंट पे बात करते हैं ये, कोई इधर उधर की एक्स्ट्रा डिटेल नहीं। हाँ आस्था, यस। मोस्टली फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, फीमेल ही इन्फ्लुएंस होती हैं, या फीमेल ही इन्फ्लुएंस होती है। बिकॉज यार वी आर कंडीशन टू लुक वेरी गुड फॉर सोसाइटी, है ना? बचपन से ही वी आर कंडीशन दैट यू हैव टू लुक गुड। तो जब हम बड़े होते हैं ना, तो वही चीजें हमारे दिमाग में होती हैं कि नहीं यार, चाहे बाकी चीजें बाहर में जाए पर हमारा अच्छा लगना वेरी इंपॉर्टेंट। यार अच्छे लगो, डेफिनेटली लगो, बट किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। आपको तैयार होना है, खुद के लिए तैयार हो, मेकअप करना है, खुद के लिए मेकअप करो। किसी सोसाइटी के लिए नहीं कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सोसाइटी तो यार किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजों में भी कोई ना कोई कमी ढूंढ ही देंगे लोग। खुद के लिए करना सीखो, स्पेशली गर्ल्स। ओके, स्टार्ट डूइंग फॉर योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू फिट इन सोसाइटी। ओके, सोसाइटी तो किसी को नहीं छोड़ती है, आप अच्छा काम भी करोगे तब भी सोसाइटी बोलेगी। ओ, नेवर थिंक अबाउट पीपल की लोग क्या कहेंगे। दिस ऑल आई कैन से। फोकस ऑन बेनिफिट्स। अब फोकस, बेनिफिट किसका होता है? कंपनी का, ब्रांड का। बिल्कुल खुद के लिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। दूसरों की वैलिडेशन के लिए नहीं, खुद के लिए। एंगेजिंग एंड डायरेक्ट। एक ये एंगेजिंग होते हैं और एक डायरेक्ट होते हैं, मतलब सीधा आपको बोल रहा है वो, बाय नाउ एंड 50% ऑफ, गेट ग्लोइंग स्किन्स इन 10 days। प्रॉपर कॉल टू एक्शन, मतलब कोई फालतू की डिटेल नहीं, सीधा क्लेम करते हैं वो लोग। ठीक है। कॉपी राइटिंग इन्फ्लुएंस डिसीजन, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कॉपी राइटिंग एक ऐसी राइटिंग है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। सेल्स क्या करती है? हमें इन्फ्लुएंस करती है। 80% ऑफ लगा दो किसी मेकअप पे या स्किन केयर पे या कपड़ों पे, ऑफ कोर्स फीमेल्स खरीदेंगी। ठीक है। तो ये सब चीजें ना हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज्यादा। चलो अब आ जाते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस क्या है इन सब चीजों का? पहला है ब्लॉग। ब्लॉग का स्टाइल क्या होता है? इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल, कन्वर्जेशनल, फ्रेंडली। पर्पस क्या है? एंगेज करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा टेबल है। यस साक्षी। कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है सीधा पॉइंट पे आना, जिस चीज को करने के लिए बोला गया हो। मतलब जैसे कॉपीराइटिंग में ये देखो, बाय नाउ एंड गेट 50% ऑफ। ये सीधा काम पे आते हैं, सीधा पॉइंट पे बात करते हैं कि अभी सेल लग रही है 50% पे, और अभी यू हैव टू बाय। या कईयों में लिखा होता है सेल, 80% सेल वैलिड टिल टुमारो ओनली। कॉल टू एक्शन का सिंपल यही मतलब है कि एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है उस टाइम पे, उसके बारे में बात करना। कोई इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा फालतू की डिटेल नहीं दी गई होती है कॉपीराइटिंग में। ज्यादातर ड्रेसेस पे होता है, ड्रेसेस पे होता है, परफ्यूम्स पे होता है।
Main focus of business is yes, yes. बस। अब चलो इसके हम कंपैरिजन पे आते हैं। ब्लॉग का स्टाइल क्या होता है? इनफॉर्मल। पर्पस क्या है? एंगेजिंग और इन्फॉर्म करना लोगों को। लेंथ क्या रहती है? मीडियम लेंथ का रहता है, ज्यादा लंबा नहीं होता ब्लॉग। वहीं पे अगर हम आर्टिकल की बात करें, उसका स्टाइल होता है फॉर्मल। पर्पस उसका भी वही है, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना, और लेंथ क्या रहती है? लॉन्ग। आर्टिकल ज्यादातर लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। सोशल मीडिया कंटेंट फ्रेंडली होता है, कैजुअल होता है, बहुत ज्यादा कन्वर्जेशनल होता है। पर्पस क्या है? ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, ऑडियंस को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। लेंथ क्या रहती है? शॉर्ट। सोशल मीडिया कंटेंट की लेंथ हमेशा ही शॉर्ट होती है। कॉपी राइटिंग परसुएसिव, परसुएट करना, लोगों को उकसाना किसी चीज को खरीदने के लिए या किसी काम को करने के लिए। पर्पस क्या है? अपना प्रोडक्ट सेल करना। लेंथ इसकी भी शॉर्ट ही होगी। कोई डाउट क्लास? टेबल समझ में आया? इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। एक्टिविटी पे हम आ जाते हैं अब। कॉपी राइटिंग नहीं क्लियर हुआ? ओके, चलो। कॉपीराइटिंग का आज था मेन काम है लोगों को उकसाना किसी चीज के लिए। जैसे आप अगर सेल लगा दो 80% ऑफ, या किसी प्रोडक्ट के नीचे लिख दो कि आपको 10 दिनों में ही बेनिफिट देखने को मिलेगा या रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो वो क्या है? परसुएट करना, किसी को उकसाना, या किसी को किसी चीज का लालच देना। ठीक है? किस वजह से? अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। पर्पस क्या है उसका? सेल करना, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, या अपने आइडिया को सेल करना। बस यही काम है उसका, और कुछ नहीं है। लेंथ कैसी रहती है? शॉर्ट रहती है। जैसे बाय नाउ एट 80% ऑफ, सी रिजल्ट्स इन 10 days, या सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉपी राइटिंग। परसुएसिव होती है, प्रोडक्ट को प्रमोट या सेल करने का इसका पर्पस होता है, और लेंथ शॉर्ट होती है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, ये पर्पस होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना और बेनिफिट। यस। ओके, एक्टिविटी क्या है? ठीक है, ये एक्टिविटी करनी है आपको। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट। चलो ठीक है, आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आप दो एग्जाम्पल ब्लॉग की, दो एग्जाम्पल आर्टिकल की, दो एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट की, और दो ही एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग की लाना, और मैं कल की क्लास में पूछूंगी। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसको कंप्लीट करना है याद से, डोंट फॉरगेट। नहीं नहीं, नहीं, आस्था याद नहीं करना है। आपने क्या करना है, दो एग्जाम्पल ब्लॉग की लिखनी है, दो एग्जाम्पल आर्टिकल की लिखनी है, दो ही एग्जाम्पल आपने सोशल मीडिया पोस्ट की, और दो ही कॉपी राइटिंग की एग्जाम्पल लिखनी है, और उसको सेंड करना है मुझे यहाँ चैट्स में। यहाँ चैट पे ऑप्शन होता है ना सेंड करने का, वहां से सेंड कर देना।
ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने क्या कंटेंट पढ़ा है? व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ कंटेंट? कौन से हमने मेन टाइप ऑफ कंटेंट आज पढ़े? ब्लॉग्स, ठीक है, और आर्टिकल। सब आंसर करेंगे, एक बच्चा ही नहीं सिर्फ बोलेगा। हम्म। सोशल मीडिया कंटेंट, कॉपीराइटिंग, ब्लॉग, आर्टिकल, हाँ ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड आर्टिकल? What is the difference between blog and article? Yes, students. Difference between blog and article. Blog is informal and article is formal. Yes, correct. Blog information informally provide करता है, article formally. Okay, Astha, Sakshi, good. What is copywriting used for? Copywriting का क्या काम है? Blogs, short paragraph, बिल्कुल. Article long. कॉपीराइटिंग का क्या काम है क्लास? करेक्ट। बाकी कहाँ पे है? स्लीपिंग। कॉपीराइटिंग इज प्रमोशन एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्लास। व्हाई इज सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट? सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट क्यों होता है? पब्लिक लाइक शॉर्ट कंटेंट एंड क्रिएटिव। ठीक है। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एंड टू मेक इट मोर एंगेजिंग। बिल्कुल ठीक आस्था, राइट पॉइंट। यस। So that's all for today class. अगर आपको कोई question है so please ask me. Designed to attract audience. Correct. If you have any question, you can ask me. Right, right, right. Yes, Astha, please. If you do not have question, you can leave class. जिनको questions है, they can stay. I'm just wrapping up the class.
प्रशांत सर से पीडीएफ के लिए। हाँ, मैं आपको भेजने का ट्राई कर रही थी टीम्स पे भी मैं ट्राई कर रही थी भेजने का, बट मेरे को आपका कांटेक्ट ही नहीं मिला। और यहाँ पे मैं चैट पे भी भेजने का ट्राई कर रही थी, बट और प्रशांत सर से मैंने बात नहीं करी। हाँ, आस्था अभी ही पीडीएफ सेंड कर देती, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। है ऑप्शन कहाँ पर है? लैपटॉप पे तो ऑप्शन नहीं, फोन में होगा। वेट, लेट मी चेक। अच्छा, लैपटॉप में कैमरा का ऑप्शन नहीं आता है। आस्था, मैं फोन से कर देती हूँ फिर। रुक जाओ। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, आई एम फाइंडिंग। इज इट फाइन? दिस इज सेशन 3। सेशन 1 2 भी मैं भेज दूंगी। देखो। ओके। ओके देन, थैंक यू क्लास। आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय एवरीवन।